and this lecture will last in another 1 hour. So time which has been given to me is till 10:30. ठीक है, मैं शुरू करता हूँ. लैंग्वेज जो आपने मुझे पहले दिन बोली थी, मिक्स लैंग्वेज विल बी अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, राइट. सो एक मिनट, इसको हटाना. As you can see, the title of today's lecture is Strategic Marketing for Efficient Disposal of Perishable Commodities. Perishable commodities, whenever we ask about the perishable commodities, it consists of fruits, vegetables, milk and flowers. Perishable commodities are generally those commodities which are having comparatively lesser shelf life. इसको फैंस बंद कर देते हैं यार, फैन बंद कर दो प्लीज, फैन बंद करो, अभी एसी कूल कर देगा. ठीक है. So at the beginning, let me give you a glimpse that how this auction is performed for perishable commodities. I believe that on in my one of the classes for PGP1, I had demonstrated you the undercover system. But generally, there are two kinds of auction systems which prevail into the market regarding perishable commodities. One is called the English auction system and the second is called Dutch auctioning system. Do you understand the difference between the two? Auction में दो चीजें होती है ना, एक इंग्लिश ऑक्शन होता है, एक डच ऑक्शन होता है. सुना है कभी पहले? नहीं सुना. देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आई एम इंटेंडेड टू सेल दिस प्रोड्यूस, प्लीज कोट द प्राइस, एंड व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग अप, लाइक the first price which was quoted for this commodity was say 10 rupees. Now somebody else asks for 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees. So when the prices are going up, this is called English auctioning system. When the prices are going up, and when the prices are quoted at the max right in the beginning, that is called Dutch auctioning system. And when the prices are going down, like if I say under the Dutch auctioning system, say the maximum price would be 50 rupees for this, and after some time, say after 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, this will be 40 rupees, 30 rupees, 20 rupees, 10 rupees. So this Dutch auctioning system largely happens with respect to perishable commodities because the freshness is the most important criteria. आपको लगता है ना, अगर ग्लैडियोलाई की स्टिक अगर आपको खरीदनी है और अभी तुरंत की प्लक की हुई है, तो उस फ्रेशेस्ट फॉर्म में सबसे ज्यादा पैसे रहेंगे. आफ्टर 2 hours पैसे कम होते जाएंगे. बाय द इवनिंग यू कैन गेट इट लाइक बाय वन गेट वन फ्री. So that is Dutch auctioning system. So the important aspect which you must understand right at the beginning is that particularly with respect to perishable commodities, this is Dutch auctioning system which happens into the market, जहां पर पैसे सबसे पहले सबसे ज्यादा होंगे और जैसे जैसे with the passage of time, I'm sure that you might have witnessed this phenomena when you go to Big Bazaar or some outlets like that. Retail Fresh वगैरह में जाइए आप, Reliance Fresh वगैरह में, तो क्या होता है, टमाटर अगर आप सुबह देख रहे होंगे अभी प्लग करके आया हुआ है तो 50 रुपए किलो होगा, और शाम को वही टमाटर जो है 20 रुपए किलो हो जाएगा. क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जो पेरिशेबिलिटी थी वो इस फैक्टर को डिनोट करती है, आइडेंटिफाई करती है कि हमको पैसे, होता ना एवरीडे रिड्यूसिंग प्राइसेस, दैट इज डच ऑक्शनिंग सिस्टम. तो पेरिशेबल कमोडिटीज के केस में डच ऑक्शनिंग सिस्टम प्रिवेल करता है. ये बात समझ में आ गई सबको, मुझे लगता है. कुछ तो प्रॉब्लम है यार इसमें. रितेश, तुम डियर यहीं आ जाओ, या तो मुझे वहां खड़े होना पड़ेगा, फिर वो मेरे बस का नहीं है. नहीं चल रहा है. एक इसके स्लाइड के पहले जाओ. यस. सो दिस इज इंडिया स्नैपशॉट. जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. We are having 52% of the cultivable land as against 11% of worldwide. Means if there are 100 acres of land on this planet, only 11% is cultivable worldwide, and we are having it more than half, 52%. So how much advantage we enjoy with that regard? This is 5 times more. अगर 11% पर दुनिया भर में खेती हो सकती है तो हम 52% पे खेती कर सकते हैं.
Second, unsurpassed natural advantages are with us. All the 15 major climates of the world exist here, right from the temperate to the tropical to the subtropical to the coastal. Everything is with us. आप दुनिया की कोई भी जलवायु जहां भी पाई जाती हो, वो सब कुछ इंडिया के किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी प्रोविंस में, किसी न किसी स्टेट में जरूर एग्जिस्ट कर रही होती है. 46 out of 60 soil types are with us. You can just quickly go through it. And we are also aiming to double our horticultural production by making it 350 million tons by 2025. With the end of this year, we are expecting to make it 350 million tons, right? Yes. When it comes to the horticulture, because perishable commodities, the major chunk of the perishable commodities comes from the horticulture only. तो अगर आप इसको देखना चाहें तो हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो कितना आ रहा है, आपको दिख रहा है 28% ऑफ जीडीपी एंड 54% ऑफ द एक्सपोर्ट शेयर. मतलब जितनी भी कमोडिटीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, उसका 54% सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आ रहा है. बाकी सारी चीजें अलग छोड़ दीजिए आप, है ना. और 28% जो कंट्रीब्यूशन है पूरे एग्रीकल्चर का, उसका भी लगभग 1/3 सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आ रहा है. हॉर्टिकल्चर में एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, दैट इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है. सो दैट मेक्स इट 28%. जस्ट द फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया इज poised at about 3,700 crore with just 0.61% share in the global floriculture sector. 3700 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है. उस दिन आपने देखा भी था जब आप विजिट पे गए हुए थे कि सिर्फ ये लोग अभी विजिट पे गए हुए थे डे बिफोर यस्टरडे. सो दे सॉ दिस वाज 1/8 ऑफ एन एकड़. मतलब 500 स्क्वायर मीटर के एरिया में उस आदमी ने करीब 12 लाख रुपए की वो फसल उगा रहा था. क्या क्या था उनके पास? जरबेरा उस समय लगा हुआ था और रोज भी लगा हुआ था. अ फार्मर जस्ट नियर बाई सम 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस. कोई जरूरत नहीं है, सब तो तुम लोगों के पास हमेशा रहेगा, हम यहीं रहेंगे. शूटिंग करने की कोई जरूरत, कर तो रहे, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा. ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, हैंडआउट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं. यस, एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट्स, यहाँ को मत अंदर आ जाओ, of about 30% likely to cross 8,000 crore by this year. 8,000 crore, such a voluminous figure. Okay? Yes. Next, please. किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ है हमारे पास, हम दे देंगे सब. ठीक है? Now we are the second largest grower of vegetables, as you can see. 11% of the world output is given by India. Next, when it comes to the low share of global export. When it comes to the global export share, it is merely 1.7%. इसका क्या मतलब है? अगर इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें अपन, तो अगर हम 11% दुनिया के में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेबल्स का, उतना हम दे रहे हैं. मतलब 1/10वां हिस्सा मोटे तौर पे 11% मतलब 1/10वां हिस्सा हम दे रहे हैं. लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो 1.7% है. क्यों ऐसा होगा? क्या स्पॉइलेज बहुत ज्यादा है, पेरिशेबिलिटी इतनी हाई है. वी डू नॉट हैव दैट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दैट प्रिजर्वेंस. उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, वो बात तो समझ में आई. लेकिन एक्सपोर्ट तो वो कमोडिटी है जो हमारे पास होती है एक्सेस में, जिसको हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस एंड मार्केटेड सरप्लस. दो चीजें होती हैं. जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूं, हमने 1 क्विंटल आलू उगाया. अगर मैं आलू का किसान हूं और 1 क्विंटल आलू उगाता हूं, तो क्या वो सारा आलू मैं मार्केट में बेच आऊंगा? नहीं ना. कुछ तो अपने घर के लिए रखूंगा, जिसको डोमेस्टिक कंजम्पशन बोलते हैं. हो सकता है 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो मैं अपने लिए रखूंगा. तो ये है 1 क्विंटल है मार्केटेबल सरप्लस, मतलब जिसको हम मार्केट कर सकते थे. और जो 75 किलो ले जाकर के हमने मार्केट में बेचा, 25 किलो अपने घर के कंजम्पशन के लिए रखने के बाद, उसको कहते हैं हम मार्केटेड सरप्लस. मार्केटेड मींस दैट सरप्लस व्हिच आई हैव एक्चुअली मार्केटेड. तो मार्केटेबल सरप्लस इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मार्केटेड if there is no domestic consumption, and marketed surplus is out of marketable surplus what I have deducted for my personal consumption and actually marketed. ठीक है, that is marketable and marketed surplus. तो जब शेयर की बात आती है, एक्सपोर्ट शेयर की बात आती है, तो इसका मतलब ये है कि हम, अच्छा किसी को ये पता है कि जो और आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एग्जांपल लीजिए, फॉरगेट अबाउट यूएसए, फॉरगेट अबाउट इंग्लैंड, इन सब कंट्रीज को छोड़ दीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनको छोड़ दीजिए, सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कितना है एक्सपोर्ट पता है?
30%, 40% से ज्यादा। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, कंज्यूमिंग अ ड्रिंक विच इज बॉटल्ड वन या टेट्रा पैक वाला है, जैसे रियल का फ्रूट जूस लेकर के अगर मैं यहाँ खड़ा होकर उसमें पीऊँ तो सब कहेंगे बड़े आदमी है साहब, रियल का फ्रूट जूस पीते हैं। हमारे यहाँ डब्बा बंद चीज को कंज्यूम करना स्टेटस का सिंबल है, लेकिन अगर आप उन मुल्कों को देखेंगे तो कंज्यूमिंग फ्रेश इज ए स्टेटस सिंबल। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रिजर्वेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, वो हमसे ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे है। तो द मेजर चंक ऑफ देयर प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड इन द प्रोसेस फॉर्म, और जिस चीज की जहां पर बहुतायत होगी वो चीज वहां पर सस्ती हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? तो हमारे यहाँ डिब्बा बंद रियल फ्रूट जूस पीना, भले उसमें फ्रूट जूस का कंटेंट जो है 5% ही होता है, बाकी 90% 95% उसमें शुगर होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, एडिटिव्स होंगे, कलरिंग एजेंट्स होंगे, सिंथेटिक होगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी डब्बा बंद चीजें कंज्यूम करना स्टेटस सिंबल है, और वहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप वहां पर एप्पल खरीदेंगे तो वो आपको प्रोसेस्ड वाला जो है वो सस्ता मिलेगा और फ्रेश वाला महंगा मिलेगा। अभी आप कुछ लोग हिमाचल के हैं, यहाँ पर क्या हिसाब चल रहा है एप्पल? मोटे तौर पे 150 रुपए किलो से लेकर के और 300 रुपए किलो के बीच में एप्पल हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप देखें तो उसमें वैराइटल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी, कुछ ऐसा आपको प्रोड्यूस मिलेगा विच इज एब्सोल्युटली अनफिट फॉर टेबल कंजम्पशन पर्पस। आप उसको खा नहीं सकते। जैसे यहाँ का रामगढ़ का एप्पल जो होता है वो सॉर होता है, खाने में खट्टा होता है, ग्रीन एप्पल है ना, दैट इज फिट फॉर प्रोसेसिंग। जैसे आप उसको आप मार्मलेट बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, और कुछ चीजें बना सकते हैं, दैट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन पर्पस। रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, ये दो ऐसी वैरायटीज हैं जो टेबल पर्पस के लिए फिट है। तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग। अभी भी अगर आप देखें, ये जो दो स्टेट्स हैं डॉक्टर साहब हमारी, जिसको हम हिमाचल और उत्तराखंड बोलते हैं, इसमें हमेशा इकोनॉमिक एक कंपैरिजन चलता रहता है। अगर आप उन स्टेट्स को खास करके जब इसको देखें, हिमाचल को देखें, तो वहां पर अदानी एग्री फ्रेश आया। किसी ने सुना अदानी एग्री फ्रेश? कोई गया है, देखा है? अदानी एग्री फ्रेश ने अपनी बहुत प्रोमिनेंट एक प्रोसेसिंग यूनिट भी वहां पर डाल रखी है और पूरा एप्पल का सप्लाई चेन डेवलप कर रखा है। हियर इज अ प्लेस कॉल्ड नौगांव, उत्तरकाशी जिले में आता है नौगांव। वहां पर एक इंडो डच एप्पल का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी भी हम उसको बाकायदे ये सारी चीजें टिश्यू कल्चर से हमने उसको प्लांट्स डेवलप किए हम लोगों ने जाकर के। हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग, हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग का मतलब होता है जहां पर एप्पल के प्लांट्स को पास पास लगा दिया जाता है और फलत कम एरिया में ही ज्यादा ले ली जाती है। अभी मैं देख रहा था, मैंने शायद उस दिन किसी से डिस्कस भी किया था, पिछले 10 सालों में हिमाचल में जो सेब का चिलिंग टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता था पहाड़ियों पे, वो चिलिंग टेम्परेचर अब उस हाइट पे उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो पिछले 10 सालों में सिर्फ एप्पल इंडस्ट्री को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, खास एक स्टेट में जिसका नाम है हिमाचल। 1500 करोड़ रुपए का नुकसान एप्पल इंडस्ट्री उठा चुकी है हिमाचल में इन लास्ट 10 ईयर्स। क्योंकि अभी क्या होता था कि जैसे ये पूरा बगान है और इस बगान पे इसी हाइट पे मान लीजिए हमको मिलने लग गया चिलिंग टेम्परेचर जो राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो चूंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वो हाइट अब यहां आ गई, तो इतने एरिया में लगाया हुआ सेब का बागान बेकार हो गया हमारा। तो दिस हैज मेड अ डेंट टू द एप्पल इंडस्ट्री इन हिमाचल अलोन एज 1500 करोड़ ऑफ रुपीज इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये है मुद्दा। लार्जेस्ट ग्रोवर तो है फ्रूट के, प्रोडक्शन तो बहुत है, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो सिर्फ 0.5% ही कर पा रहे हैं। ये है वो चीज जिसको हमको एड्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन मैं यहां पे पढ़ाता हूं आपको। पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेजेस सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की 18 to 30% है, वैल्यूड एट रुपीज 45,000 करोड़ ऑफ रुपीज। दिस इज वेरी एग्जॉस्टिव फिगर। 45,000 करोड़ रुपए का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिर्फ इस वजह से हम वेस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसको स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं, गोडाउनिंग की फैसिलिटी नहीं, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। 45,000 करोड़ रुपए इज सच अ बिग फिगर एंड दिस इज द फिगर व्हिच इज द टोटल कंजम्पशन फिगर ऑफ कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम। यूके जितना कंज्यूम करता है उतना हम वेस्ट कर देते हैं। 18 to 30% इज रेंजिंग बिटवीन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। लेकिन अगर मोटे तौर पे हम लेते हैं तो 18% पकड़ें तो 1/5 खराब कर रहे हैं, और 30% पकड़ें तो मोटे तौर पे 1/3 खराब कर रहे हैं। हम इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं प्रोसेस्ड फॉर्म में।
इस वजह से हमारे यहाँ एप्पल सस्ता है। मैं अभी कह रहा था 150 से 200 रुपए से 300 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन ऐसा भी एप्पल मिलेगा आपको जो 40 रुपए में मिल रहा है। थोड़ा सा दागी होगा, थोड़ा सा सावर हो सकता है, थोड़ा सा डेंट हो सकता है उसमें, थोड़ा सा अनराइपेंड हो सकता है, ओवर राइपेंड हो सकता है, फाउली स्मेल हो सकती है उसमें बिकॉज ऑफ पैथोजन लोड, लेकिन आपको 40 रुपए से भी एप्पल मिलना शुरू हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, बोलना ज्यादा है। यस, इस स्लाइड को जरा सा एक बार पढ़ें आप प्लीज। बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं, इनके जैसे साइंटिस्ट तमाम सारा काम भी कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम हो रहा है उस रेशियो में डेवलपमेंट फार्मर का या विकास किसान का नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आप देखिए जो न्यू जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन वाई एंड जेड बोलते हैं, द 3 जनरेशन, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई एंड जनरेशन जेड। तो जनरेशन वाई एंड जेड जो है वो फार्मिंग अपनाना नहीं चाह रही है। अगर आप 100 लोगों का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो फार्मिंग में जाना चाहते हैं, 90% ये होगा कि साहब कहीं नौकरी मिल जाए, भले छोटी मोटी मिल जाए, हम नौकरी करना पसंद करेंगे। ये हो क्यों रहा है? ये हो इस वजह से रहा है बिकॉज द फार्मिंग ऑक्यूपेशन इज नॉट अ रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन इन दिस कंट्री। ये नहीं हो पा रहा है हमसे। Although the farmer feels that a lot has been done to revive the agriculture, वो तो ये सोचता है ब्लू रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, येलो रिवॉल्यूशन आई, व्हाइट रिवॉल्यूशन आई, गोल्डन रिवॉल्यूशन आई, तमाम तरीके की रिवॉल्यूशंस आई, बावजूद इसके फार्मर का जो स्टेटस है वो अभी भी सबड्यूड है, अभी भी डाउन ट्रोडन है, अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अभी भी वो सोचता है कि वास्तव, सोच के देखो, अगर उसको फायदा मिल रहा होता तो कौन ऐसा आदमी है जो खेती छोड़ना चाहेगा या कोई धंधा छोड़ना चाहेगा? अगर मुझको इस धंधे में फायदा है तभी तो यहाँ टिका हुआ हूं, अगर फायदा ही नहीं होता तो क्यों टिकता? लेकिन फार्मर को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑफ व्हाट यूज इफ ही कैन नॉट बी फैसिलिटेटेड टू सेल हिज प्रोड्यूस। आज भी, उस दिन मैं अपनी क्लास में भी डिस्कस कर रहा था इस चीज को कि फार्मर के पास आज भी वो सुविधा नहीं है कि वो अपनी उगाई चीज के दाम खुद तय कर सके। कौन तय करता है? बिचौलिया तय करता है। तय कैसे करता है? उस सिस्टम पे तय करता है। मैं अभी उस दिन क्लास में डिस्कस कर रहा था, एक अंडर कवर सिस्टम होता है, हाथ पे तौलिया डाल करके या हाथ पर रुमाल डाल करके, और लाइए कमल भाई अपना हाथ दीजिए, उस दिन मैंने दिखाया था। अगर मैं इसको टच कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ टच कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। क्या होता है कि ये जो पोर्स होती है, जो नट्स होती है, इनको टच किया जाता है। इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1.5 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 1, 1.5, 2, 2.5, 3 है। समझ गए? फार्मर को नहीं पता चलेगा कि उसके प्रोड्यूस का क्या दाम मिडिलमैन कोट कर रहा है। और फार्मर को, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बल्कीनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप, फार्मर कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हिज प्रोड्यूस बैक और टेक हिज प्रोड्यूस बैक, क्योंकि आप ले आया ट्राली पे लाद करके तो उसको बेचना ही बेचना है, चाहे औने पौने दाम जो कुछ भी मिलते हो, वापस तो नहीं आ सकते ना। अगर ये सेलफोन मुझे बेचना हो और ये सही दाम न दे रहे हो तो क्या करना है? मैंने 1 लाख रुपए की चीज है, जेब में डाली, वापस लेके भैया कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही 1 लाख रुपए का गन्ना लेकर के मैं आ गया हूं ट्राली में लाद के, तो वापस ले जाऊंगा क्या? नहीं ले जा सकता ना, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, ट्राली का किराया है, और मेरे अपने पूरे दिन की मेहनत है जिसको अकाउंट फॉर किसान करता ही नहीं है। वो अपने लेबर को और अपनी फैमिली के लेबर को अकाउंट फॉर करता ही नहीं। वो तो सोचता है कि ये तो मेरा काम है, इस वजह से जो मेरा मैनुअल लेबर लगा, 300 रुपए की दिहाड़ी है ना आज की तारीख, कितनी दिहाड़ी है? 600 भी हो सकती है, लेकिन 300 मैं एवरेज मान लेता हूं गांव में, तो 300 रुपए की अपनी दिहाड़ी, और जो लड़का हमारा लगा हुआ था कि लादने में गन्ने को, उसकी दिहाड़ी तो मैंने जोड़ी ही नहीं है। अगर उसकी भी दिहाड़ी जोड़ लूं तो मिला तो हमें कुछ नहीं ना, 8 घंटे। और आप लोग तो शायद देखते होंगे जब भी प्रोसेसिंग के लिए वो जाते हैं या लेकर के मिल वगैरह में जाते हैं, सो दे हैव टू वेट फॉर आवर्स टुगेदर। वो गन्ने की ट्राली के नीचे ही बेचारे मच्छरदानी लगा कर रोटी वोटी लेके जाते हैं, वहीं खाते हैं, लेटते हैं, सोते हैं। जाने कब नंबर आएगा, जाने कब अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा भी तो दाम आपको वो मिलेंगे जो मिलने निर्धारित किए हैं। दुनिया में कोई और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जहां पर दाम कंज्यूमर डिसाइड करता हो। सैमसंग का फोन अगर आप लेते हैं तो सैमसंग ने कहा कि 1.5 लाख रुपए का फोन, आप जानते हैं कि ओवर प्राइस्ड है, लेकिन बावजूद उसके आप उसको खरीदते हैं। जो प्राइस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नया मॉडल आते ही 50,000 रुपया गिर जाता है उस समय, लेकिन आप उसको खुशी खुशी दे देते हैं। लेकिन अगर आप किसान से खरीदने जाते हैं फल और सब्जी,
तो 1 घंटा खुचड़ करता है वो आदमी जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का फोन लेके घूम रहा है बाजार में, कहता है अच्छा 10 रुपए में दोगे, 8 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, 4 रुपए देंगे। तब जब वो हाथ जोड़ देता है ऐसे करके, तब तुम देते हो उसको 5 रुपया। गलत नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारी we all have been brought in the same environment, so we know this phenomena, ठीक है। वो 3 चीजें चाहता है। पहला चाहता है रिम्यूनरेटरी प्राइस मिल जाए उसके खून पसीने के लिए, कम से कम 10% 20% बढ़ा करके तो मिले। कई बार आपने देखा होगा टमाटर, हम अभी मैं लाया हूँ पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स, टमाटर खेत में छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी तुड़ाई का खर्चा, उसकी लदाई का खर्चा, उसको बाजार तक ले जाने का खर्चा ज्यादा है बनस्पत जो हमको मिलना है। गोभी का हर साल यही हाल होता है ना। फिर वो चाहता है कि किसको बेचे किसको न बेचे, इस पर वो डिसाइड कर पाए। और तीसरी चीज वो चाहता है कि प्लेस और टाइम कन्वीनियंट हो जाए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक DA स्लाइड में बहुत कुछ नहीं हो सकता, मैं जो बता रहा हूँ वो रियल आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो PMO के अंडर में काम करता है, दैट इज कॉल्ड DARPG। सुना किसी नाम? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो DARPG का काम क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकिंग का कंसेप्ट होता है, जिस लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं और उन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन होता है। जैसे किसी ने तो कहा होगा ना कि उस दिन हम लोगों ने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड किसी ने तो सोचा होगा, तब तो वो स्कीम बनी होगी, तब आई होगी मार्केट में। ऐसी और तमाम स्कीम्स होती हैं। तो DARPG में क्या होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये पॉलिसी को इवॉल्व करते हैं, पॉलिसी को फ्रेम करते हैं और उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होता है। तो DARPG हर साल एक अवार्ड देता है ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई पॉलिसी ऐसी इंप्लीमेंट की हो जिसका इंपैक्ट सोसाइटी में ज्यादा आया हो, बढ़िया आया हो। ऐसे का इंपैक्ट असेसमेंट होता है और इस इंपैक्ट असेसमेंट के लिए एक स्पॉट वेरिफिकेशन किया जाता है। मतलब एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी जाती है। जैसे इन्होंने क्लेम किया कि साहब हमने ये इनिशिएटिव लिया था और इसका ये इंपैक्ट आया है, तो ऐसा नहीं है कि इनके कहने से मान लिया जाएगा। एक एक्सपर्ट्स की टीम होगी ऑब्वियसली जो जाएगी और उसको फील्ड में जाकर टेस्ट करेगी कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो 2-3 साल पहले की बात है, एक डिस्ट्रिक्ट है हरदा MP में। उस और हरदा डिस्ट्रिक्ट की खासियत यह है कि वहां पर व्हीट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हरदा में व्हीट की। तो एक नया IAS था, ऐसे ही रही होगी उसकी उम्र 26-27 साल, उसका नाम था जॉन किंग्सले। नाम तो अंग्रेजी लग रहा है, लेकिन चूंकि कैरल कैडर के वो IAS थे, आजकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में है, ED में है, वो डायरेक्टर है। तो उस समय वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कहाँ के? हरदा डिस्ट्रिक्ट के। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ था। तो गवर्नमेंट से एक चिट्ठी PMO ऑफिस से हम लोगों को आई, मुझे और ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आपको ये स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट नामित किया जाता है PMO की ओर से, और आप जाएं देखें जाकर के हरदा में कि वास्तव में ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है ये है भी वहां या नहीं है, या है तो जितना क्लेम किया गया उतना ही है या कम ज्यादा है कुछ। तो मैं और GS साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर के, हम दोनों गए हरदा। तो उसने किया क्या था इसको समझना, और बाद में वो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना MP में, और अब तो मुझे लगता है सभी स्टेट्स में मिलता जुलता सा मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है। तो उसने किया क्या था कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस था, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के अंदर से होकर के रास्ता हुआ करता था एक वेयर हाउस का। बात समझाई? जहां पर गेहूं की कटाई के बाद किसान सारे अपना ट्राली में, बैलगाड़ी में वगैरह वगैरह लाद करके उसको ले जाकर के अंदर जाया करते। तो जैसे मान लो ये रास्ता है, यहीं पे DM साहब का ऑफिस है और वहां पर वेयर हाउस है। तो होता क्या था कि जब तमाम सारी, और पतला सा रास्ता था, हम लोगों ने देखा, वो खड़ंजा लगा हुआ रास्ता था, कुछ पेवर्स लगे हुए थे, मतलब वो नैरो था काफी। तो जब सारे फार्मर्स लेकर के अपना अपना बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली सब पहुंचने लगते थे, तो वहां पर बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती थी। भीड़ लगी, उधर से जाम लगा, इधर से जाम लगा, वो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो उसने क्या किया था कि ही आस्क्ड ऑल हिज SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को उसने बुलाया और उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अपनी टीम को तैनात करो जो रेवेन्यू का काम देखते हैं, कि वो हर किसान के पास जाकर ये पता करें कि उसने कितना रकबा गेहूं का अपने खेत में लगा रखा है। ठीक, उसको अपना सेलफोन नंबर दें और उसका सेलफोन नंबर ले और ये पता करके आओ। जैसे ये 10-20 लोग किसान हैं, अब SDM साहब का आदमी पहुंचा, इन्होंने पूछा कितना लगाया, तो उन्होंने कहा 5 बीघे, 10 बीघे। कलेक्ट हो गया डेटा, अपना नंबर दिया, उसका नंबर ले लिया। अब उसने एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जैसा डेवलप कर दिया और उसने ये देखा कि मान लीजिए बाजपुर का कोई किसान है, तो बाजपुर से नियरेस्ट वेयर हाउस कौन सा है और उसकी
वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी कितनी है। मैं गदरपुर का किसान हूं तो गदरपुर से नियरेस्ट कौन सा वेयर हाउस है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेटा इकट्ठा हो गया। अब उसने फार्मर को एक ऑप्शन ये दिया कि आप अपना गेहूं काट करके इस डेट पर इस गोडाउन में, जो कि नियरेस्ट गोडाउन था, वहां पर लेकर के फला डेट पे पहुंचेंगे। ये बात समझ आई, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आ चुका था। एंड देयर वाज आल्सो एन ऑप्शन टू गेट दैट डेट चेंज वंस। जैसे मान लीजिए हमको 13 तारीख मिली, 13 अगस्त, और मैंने कहा कि सर आई एम हैविंग सम फंक्शन एट माय होम, तो इंस्टेड ऑफ 13 कैन इट बी मेक टू 18, तो उसने कहा यस। एक टाइम का परमिटेड भी था। मोबाइल पे मैसेज आ गया, मुझे पता चल गया। अच्छा, यही मैसेज उस वेयर हाउस वाले को भी मिल गया, उसने भी देख लिया कि यार इस दिन इतने किसान इतना गेहूं तकरीबन लेकर के मेरे वेयर हाउस पे आएंगे। तो पल्लेदारी का वर्ड सुना, पल्लेदारी। पल्लेदारी का मतलब होता है किसी चीज को, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को जो लदवाने का हिस्सा होता है उसको पल्लेदारी बोलते हैं। वेइंग जिसको कहते हैं, वो वेइंग तो हो गया तौलना, और तौलने के बाद लोडिंग जो चार्जेस होते हैं वो पल्लेदारी कहलाता है। तो हमें कितने पल्लेदार चाहिए उस गेहूं को उतारने के लिए, लदाने के लिए, चढ़ाने के लिए, वो भी हमको पहले से पता चल गया। मान लो तुम्हारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें ये नहीं पता कितने आने वाले हैं, तो कितना खाना बनवाओगे। 20 आदमी को बनाया, 10 आए तो खराब, 50 आ गए तो बेइज्जती। दोनों में से एक चीज तो होनी है। तो ये चीज उसने पहले से पता हो गई। अब सोच के देखो पहले की सिचुएशन जहां पर फार्मर को, कई बार ऐसा भी होता है कि व्हेन फार्मर रीचेस टू अ वेयर हाउस, पर्टिकुलर वेयर हाउस, ही कम्स टू नो कि भैया यहाँ तो जगह खत्म हो चुकी है, अब तुमको यहाँ का माल लेकर के खटीमा जाना है। तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी है, ट्रबल भी है, वो सारी चीजें। एंड कंपैरेटिवली व्हेन यू आर बिफोर हैंड अवेयर कि यार यहाँ पे लेके जाना है, इस डेट पे लेके जाना है, टाइम भी स्लॉट भी है, तो मुझे पता है कि कितने लोगों की व्यवस्था मुझे रखनी है वहां पर। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व। तो हम लोग करीब करीब सारी तहसील में गए, मैं और जय साहब, हम लोगों ने देखा, फार्मर से बात की, और उसके बाद उसने एक इनिशिएटिव और लिया अंडर स्टेप नंबर 2। वो जो पेमेंट का रियलाइजेशन होता था वो भी प्रॉम्प्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस वाले को पता है कि इतना माल मेरे पास आने वाला है पूरे सीजन में, तो मुझे कितने की व्यवस्था पैसे की करके रखनी है। उसका पेमेंट रियलाइजेशन विद इन 3 days शुरू हो गया। एंड अल्टीमेटली दिस प्रोजेक्ट वाज नेम्ड एज ई उपार्जन। उपार्जन का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट, और इलेक्ट्रॉनिकली चूंकि हो रहा था इस वजह से इसका नाम दिया गया ई उपार्जन। और उस साल का जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड था, प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड बोलते हैं इसको, दैट वाज कन्फर्ड टू दैट जेंटलमैन नेम्ड जॉन किंग्सले। ये बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके, अभी उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया गया है गन्ने के लिए खास करके, और इसी तरीके के इनिशिएटिव्स तमाम और कमोडिटीज के लिए भी अलग अलग, बट दैट मॉडल वाज द इनिशियल मॉडल ऑफ इट्स काइंड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फार्मर को इस तरीके, लेकिन अब देखिए यहाँ एक पढ़ी लिखी जेंट्री बैठी हुई है, ऐसे लोग भी बैठे हुए जो खुद भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो रिसर्चर हैं, ऐसे लोग भी हैं जो स्टूडेंट हैं। लेकिन क्या इस इनिशिएटिव के बारे में हम में से किसी को भी पता था? बिफोर आई टोल्ड यू, नहीं पता था। इसका क्या मतलब है? झांको नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। क्यों नहीं पता होना चाहिए था? पता होने से क्या पता चला? अब ये जेंट्री जो 50-60 लोगों की यहाँ बैठी हुई है, ये कम से कम 500 लोगों को और बताएगी। तो नॉलेज होना एक चीज है, उस नॉलेज का डिसेमिनेशन हो पाना ये बिल्कुल दूसरी बात है। Could you get my point? ठीक है ना? तो आज हमने इतने लोगों को बताया ये इनिशिएटिव। अब कम से कम अगर आप क्यूरियस होंगे तो अभी जब मेरा लेक्चर खत्म होगा तो एटलीस्ट यू विल ट्राई टू सर्च आउट इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, एंड यू विल फाइंड इट ऑन योर सेल फोन्स इवन दैट दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट इंफॉर्मेशन व्हिच हैज टेकन a very noble of its kind project, not only in Madhya Pradesh but across the India। और तमाम कमोडिटीज में अलग अलग जो भी कैश क्रॉप्स है वहां की, उन कैश क्रॉप्स के लिए मॉडल इंप्लीमेंट किया गया, नेमिंग ई उपार्जन, ई प्रोक्योरमेंट। Could you get my point? So this kind of technology need to be evolved, और उस टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन भी उस फार्मर तक होना चाहिए जिससे फार्मर को भी पता चल पाए कि वास्तव में क्या हमारे लिए किया जा रहा है। और so he wants to decide over these 3 things: number 1, a remunerative price; number 2, decide over his buyers; number 3, a time and place convenient to him। So this was regarding time and place। आइए डॉक्टर प्लीज, टेस्ट में हर बार उठना पड़ रहा है। हाँ, ये वो चीजें हैं, 4-5-6 फैक्टर्स हैं जिसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूं।
जो डिफरेंशिएट करती है किसी भी मार्केटिंग एफर्ट को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ, ठीक है ना। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज पेरिशेबिलिटी इटसेल्फ। ये पेरिशेबल नहीं है, ये अगर साल भर भी रखा रहेगा तो पेरिशेबल तो नहीं है, ये तो हजारों साल तक प्लास्टिक ऐसे ही रखी रहेगी। सेब रख दो ला करके, चाहे जिस भी वैरायटी का हो, जिस भी क्वालिटी का हो, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन स्पॉइल्ड, फाउल स्मेल आ जाएगी, पैथोजन लोड बढ़ जाएगा उसका। सीजनैलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, भिंडी इस समय खाओगे तो 10 रुपए किलो मिलेगी, जाड़े में खाओगे तो 50 रुपए किलो मिलेगी, सिंपल बात है। सो पेरिशेबिलिटी, सीजनैलिटी एंड बल्कीनेस। मैंने कहा ना, 1 लाख रुपए का फोन जेब में डाल के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 1 लाख रुपए का गन्ना हो, टमाटर हो, गेहूं हो, तो उसके लिए कम से कम 2 गाड़ी करनी पड़ेगी। वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मेक का मोबाइल फोन लिया है तो इसकी क्वालिटी सब जगह एक जैसी रहेगी। आप यहाँ खरीदो, चेन्नई में खरीदो या कहीं और खरीदो, जाकर जम्मू कश्मीर में खरीदो। लेकिन सेब की वैरायटी मैंने कहा ना अभी 40 रुपए से लेकर के और 300 रुपए किलो तक मिल रहा है। केला देख लो, कोई फॉर दैट मैटर, यू नेम इट, हर चीज में वेरिएशन होगा। और पेरिशेबिलिटी वो कंपोनेंट है जो इस वेरिएशन को हमेशा डिक्टेट करता रहेगा। फ्रेशेस्ट है, सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी। डच ऑक्शनिंग सिस्टम, रिवर्स ऑक्शनिंग सिस्टम जिसको बताया मैंने अभी आपको, ठीक है ना। और वेरिएशन की वजह से कोई एक फिक्स प्राइस, जैसे अभी एक बड़ा रिफ्ट हुआ किसको लेकर के कि साहब हर कमोडिटी के लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कर देती, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर देती। जिस आदमी ने कभी खेत में घुसा नहीं, जिसके पैर पे कभी मिट्टी लगी नहीं, जिसने कभी गोबर में हाथ साना नहीं, वो भी नारा लगा रहा है संसद में कि साहब एमएसपी होनी चाहिए, हर क्रॉप के लिए एमएसपी होनी चाहिए। उसमें उनको प्रैक्टिकलिटी पता ही नहीं कि एमएसपी, गवर्नमेंट बेवकूफ तो नहीं है कि एमएसपी लागू नहीं कर देती। अरे यार, अगर एमएसपी लागू कर दो, उससे कोई फायदा हो रहा हो तो कम से कम ये अननेसेसरी एक मुद्दा तो नहीं बनेगा ना। लेकिन एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि गेहूं और धान के केस में भी जब खरीद होती है, आपके तो बगल में खरीद होती है, वहां पर होती नहीं है टीडीसी वालों का, धान में एक मॉइस्चर कंटेंट होता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट उससे ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट भी तुम्हारा नहीं खरीदेगी। फॉरगेट अबाउट द प्राइवेट प्लेयर। कितना परसेंट होना चाहिए? 6-7% से ज्यादा अगर धान में मॉइस्चर हुआ तो आपका धान मार्केट में बिक नहीं पाएगा। किसान क्यों परेशान है? धान उगाया, काट करके, दवा करके, उसने ला करके खलिहान में डाल रखा है, बारिश हो गई तो जो धान आज की तारीख में 100 रुपए में बिक सकता था मसलन, वो कल 50 रुपए में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इतना ज्यादा हो गया। जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा वैसे उसमें स्मटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तमाम समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट भी तभी लेती है जबकि उसका मॉइस्चर कंटेंट उस स्टिपुलेटेड कंटेंट के परसेंटेज से कम होता है, नहीं तो वो भी नहीं खरीदती। वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर सेब आप खरीदना चाहें, सेब देखना चाहें, तो सेब में 100 तरीके की वैरायटीज हैं, 100 तरीके का वेरिएशन है, 100 तरीके के साइज हैं, 100 तरीके की उसकी डिफरेंसेस हैं। तो वो नहीं हो सकता, वेरिएशन है इसमें। इरेगुलर सप्लाई चेन है। अभी गवर्नमेंट में एक बैठक हुई थी आईसीआर, उसमें आईसीआर में, तो मैं गया था खुद। एक चीज हम नहीं करते हैं, जो पॉपुलेशन की सेंसस है वो तो हम कर रहे हैं, देख रहे हो बिहार में एसआईआर बन रहा है, फलाना बन रहा है, लेकिन हॉर्टिकल्चरल सेंसस हमने कभी नहीं की, एग्रीकल्चरल सेंसस हमने कभी नहीं करी। फर्क समझ में आया? जैसे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं कमल भाई, और ये हर साल जो है मान लो बंद गोभी उगाते हैं। हम 2 साल से, हाँ हम इनके पड़ोसी किसान हैं, मैं 2 साल से इनको देख रहा हूँ कि यार कमल भाई जो है पहले मारुति चलते थे, अब ये जो है बड़ी गाड़ी ले आए। तो हमने इनसे पूछा तो इनका यार बढ़िया फायदा हो रहा है गोभी में। हमने अगले साल हमने भी गोभी लगा दी, इन्होंने भी अपने फार्म पे गोभी लगा दी, इन्होंने भी गोभी लगाई, सबने गोभी लगा दी। अब गोभी का क्या होगा अगले साल? ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे और इनके साथ हम सब भी डूबेंगे। अगर फार्मर को ये बता के रखा जाए, डॉक्टर साहब आप लोगों के मतलब की चीज है, आप सुनिएगा, हॉर्टिकल्चरल सेंसस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये सजेस्ट किया वहां पर, जिसको एक्नॉलेज भी किया, अप्रिशिएट भी किया और उसको डॉक्यूमेंट किया उन्होंने। मैंने कहा अगर स्टेट में ये पता चल जाए कि ग्लट की सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, अगर हॉर्टिकल्चर सेंसस कर दी जाए, अगर फार्मर को ये पहले से पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड कंजम्पशन का लेवल क्या होने वाला है, तो कितना प्रोडक्शन हमको चाहिए होगा जिससे हम अपनी नेशनल मार्केट को फीड कर पाए। बात समझ आ रही है? अगर 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करना पर्याप्त होगा तो 1 क्विंटल गेहूं किसको उगाना, कैसे उगाना, ये बता दिया जाए, गोभी उगाना बता दिया जाए, टमाटर उगाना बता, तो मार्केट में ग्लट की सिचुएशन नहीं आएगी। और जब ग्लट की सिचुएशन आएगी तो प्राइसेस हमेशा, डिमांड एंड सप्लाई का कर्व आपका गड़बड़ होगा और प्राइसेस विल डिप डाउन।
वो नीचे चला जाएगा। और ऐसा हम नहीं करते हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस समय टमाटर क्या हिसाब चल रहा है बाय द वे, कोई गया हो कल हाट, 80 रुपए से 100 रुपए किलो चल रहा है टमाटर। अभी 20 दिन पहले कितना टमाटर चल रहा था? 40 रुपए। उसके 20 दिन पहले चल रहा था 10 रुपए किलो चल रहा था। अभी ये कब तक चलेगा? जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाता। एक अनियन डिप्लोमेसी है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड अनियन डिप्लोमेसी? अनियन मतलब प्याज, प्याज की डिप्लोमेसी सुना है किसी ने वर्ड? हाँ, लिखो इसको वर्ड को, कभी देखना इसको, ढूंढना, अनियन डिप्लोमेसी, ONION डिप्लोमेसी, अनियन डिप्लोमेसी। पाकिस्तान से सारा झगड़ा है हमारा, लेकिन प्याज आने की जो एक ट्रेड है ना, वो हमेशा चालू रहता है जब तक पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नासिक से प्याज आता है। अब वो प्याज का एक सीजन होता है, जब हमारे यहाँ प्याज खत्म होने लगता है तो प्राइसेस आपने देखे होंगे, हर बार होता है ना कि वो चिल्लाने लगते हैं कि गरीब आदमी क्या खाएगा, तो प्याज नमक रोटी खाता, प्याज नमक रोटी खाता, प्याज नमक रोटी, ये तो मुद्दा बन जाता है प्याज नमक रोटी। प्याज एक समय में ऐसा भी होता है कि जब वो बहुत जो फिल्दी रिच लोग हैं उनका शगल हो जाता है, क्योंकि वो तब 100 रुपए 150 रुपए किलो बिकने लगता है। तो आदमी चिकन मटन बनाता है तो उसमें कहता है प्याज का रसा डाल देना, उसमें एसेंस डाल देना, प्याज मत डालना, क्योंकि प्याज मुर्गे ज्यादा महंगा हो जाता है। तो प्याज का ट्रेड हम कभी भी पाकिस्तान से बंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज पाकिस्तान की स्टेपल क्रॉप है और वहां से हमेशा वो बॉर्डर खुला रहता है। देखना इसको, अनियन डिप्लोमेसी वर्ड है पूरा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इरेगुलर सप्लाई चेन है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमेशा फ्लक्चुएशन होता है। फ्रेगमेंटेड साइज ऑफ होल्डिंग्स, हम बड़े किसान हैं, हम थोड़ा घाटा सह जाएंगे। छोटा किसान 2 बीघे में बेचारा उसने गोभी लगा रखा, अगर वो 2 बीघा उसका खराब हो गया तो बर्बाद हो गया, उसके पास तो अल्टरनेट कुछ है नहीं। 100 बीघे वाला 2 बीघा 4 बीघा खराब भी होगा, पानी पुनी पड़ गया तो हम सह जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स और स्कैटर्ड प्रोडक्शन बेसिस की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम विच आई हैड स्टार्टेड माय लेक्चर इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बहुत कम है हमारे यहाँ, इस वजह से पेरिशेबिलिटी। किसी have you ever seen zero energy cool chambers? Heard about that? सुना, देखा है कभी किसी ने? देखा है आपने? कहाँ देखा? यहाँ बना रखा है। हाँ हाँ, सोलर फोलर कुछ जरूरत ही नहीं। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, किसी तरीके का एनर्जी नहीं चाहिए। ICAR ने डेवलप किया था, IRI सॉरी, हाँ सब्जी कोठी का, तो वो तो हमारा अपना, चूंकि हमने कुछ उसमें ऊपर नीचे करना है तो हमने कुछ भी कह दिया उसको। लेकिन होता क्या है, वो ऐसा समझो कि ये 2 दीवारें होती है, ब्रिक वॉल होती हैं, साधारण ब्रिक वॉल, और दोनों दीवारों के बीच में इतना एक गैप होता है, करीब 1 फीट का गैप होता है। उसके बीच में बालू भर दी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर साहब। तो बालू भर दी जाती है और उसके बीच में सामान रख दिया, जैसे टमाटर है, जो भी जिसको भी हमें प्रिजर्व करना है। थोड़ा सा बहुत दिन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि महीना 2-4 महीना काम करेगा, हाँ, लेकिन 4-6 दिन, जब तक कि प्राइसेस मार्केट में स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक वो काम करेगा आपके लिए। तो उसमें सामान रख दिया, उसके ऊपर बालू और ऊपर थैश डाल दी, ऊपर मतलब छप्पर डाल दिया, जिससे एकदम डायरेक्ट सनलाइट ना रहे। और जो बालू भरा हुआ है उसमें हल्का सा मॉइस्चर रखते हैं, तो मॉइस्चर की वजह से, ब्रिक वॉल की वजह से वो ठंडक अंदर आती रहती है उसकी। तो ये 4-6-10 दिन आपका काम चला देगा, कोई एनर्जी नहीं चाहिए बिल्कुल, तभी उसका नाम है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। ये बात समझे? इस तरीके की जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी अभी तक फार्मर के पास नहीं पहुंची है। अब ये तो साइंटिस्ट हैं, ये तो अपना PhD कर, तो इन्होंने तो देख रखा है, लेकिन अगर हम सब ने देख रखा होता तो वो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती, क्योंकि तब इसका मतलब होता कि इस टेक्नोलॉजी की जो रीच है, जो इसका इंपैक्ट है, वो बहुत हाई है, क्योंकि हम सबको पता है, हम सब ने देख रखा है। इसका मतलब कि लोग काम कर रहे होंगे तभी तो देखा होगा, कहीं बना ही तो देखा होगा। मान लो मैंने अपने चैम्बर में, अपने लैब के पीछे बनवा भी लिया, और ये आए मोहन साहब तो इनको दिखा दिया, वो आए तो उनको दिखा दिया, तो फार्मर तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची ना, उसका सोसाइटल बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ। आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, पेटेंट भी करा लिया, पेपर भी छाप लिया, नाम भी हो गया, विशाल से अवार्ड भी मिल गया, लेकिन वो अल्टीमेटली फार्मर तक तो नहीं पहुंचा ना। तो टेक्नोलॉजी हमने अपने लिए थोड़े, हमारे पास तो फ्रिज है ही है घर में, टेक्नोलॉजी जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, ये है मुद्दा। हाँ बोलो। अभी जैसे जो भी टेंशन रहे दोनों के, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तब सिंधु वाटर ट्रीटी अपन ने सस्पेंड कर दी। हाँ। तो वहां से सर ये जो अनियन डिप्लोमेसी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया? देखो, ये जो होता है, ये
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक दो फैक्टर्स नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सारी चीजें बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं होता है। एक ऐसी अपफ्रंट जिसको कहते हैं, तो अपफ्रंट ये होता है कि हमको दुनिया को क्या संदेश देना है, हमको अपने लोगों को क्या संदेश देना है, हमको उन मुल्कों को क्या संदेश देना है जो पाकिस्तान के साथ हैं। इसी का नाम तो डिप्लोमेसी है ना। तो ये ट्रेड्स हमेशा ऑन रहते हैं। अभी चाइना, तुम जितना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है यहाँ बैठा हुआ आदमी, उसमें से 90% चाइनीज होगा। आप नाइके का शूज लीजिए, एडिडास का शूज लीजिए, रिबॉक का शूज लीजिए, वो कहाँ का बना हुआ है? ताइवान का बना हुआ है, मेड इन ताइवान। देखना पलट करके जूता, अगर ओरिजिनल है तो ताइवान का बना होगा, ठीक है। जो यूएस में कॉटन बिकता है ना, शर्ट बिकती है, वो मेड इन जानते हो कहाँ होती है? बांग्लादेश के बनी हुई होती है। 90% कॉटन, बेस्ट कॉटन बांग्लादेश। वो आपस में कुछ भी हो जाए, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, वो एक फिनोमिना होता है। हाँ, कल को वही नहीं रहेंगे, यही नहीं रहेंगे, तब अलग बात होगी, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम हमेशा मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजें रुक जाएंगी। अभी देखो मैच होने वाला था तो किसी ने कह दिया कि मैच नहीं होना चाहिए, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं खेलेंगे, तो रोक दिया गया। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रुका है। अभी कोई वो लेके आएगा, नहीं वो खेल तो अलग है, युद्ध अलग है, फलाना अलग है, तो चलो खेल लेते हैं। अच्छा, 2-2 बॉल खेल लेते हैं, चलो एक एक ओवर खेल लेते हैं, तो वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, ठीक है। ये भी बात मैंने कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चलो आगे। ये इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज की सप्लाई चेन का डिफरेंस है मोटे तौर पे। अगर आप देखें, इंडिया में सप्लाई चेन लंबी है। पहले क्या होगा? फार्मर, फिर कंसोलिडेटर, फिर कमीशन एजेंट, ट्रेडर, फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। जितनी लंबी सप्लाई चेन, उतना ही ज्यादा वेस्टेजेस और उतना ही ज्यादा लो प्रोड्यूसर्स शेयर इन कंज्यूमर्स रूपी। एक फिनोमिना है विच इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स शेयर इन कंज्यूमर्स रूपी। कंज्यूमर मतलब हमने अगर 100 रुपया दिया है टमाटर के लिए 1 किलो, तो क्या ये 100 रुपया फार्मर तक पहुंचा? नहीं। फार्मर तक कितना पहुंचा जानते हो? 20 रुपया, मुश्किल से 20 रुपया पहुंचा होगा, मुश्किल से। वो बाकी के पैसे कहां गए? 80 रुपया वो मार्केट वालों को गए, मिडिल मैन को चले गए। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहां पर एक बड़ा प्लेयर है बीच में, वही फार्मर के बिहाफ पर उसको खरीद रहा है और आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर रहा है। सो द नैरो, द शॉर्टर द सप्लाई चेन, हायर द प्रॉफिट्स टू द फार्मर एंड बेनिफिट टू द कंज्यूमर एज वेल। ठीक, चलो आगे। हाँ, दिखाओ इनको पिक्चर। ये टमाटर का हाल देख लो। अभी टमाटर क्या हिसाब है? 100 रुपए। अभी साउथ से फिल्म है, ये स्नैप है। अब देखो, ये टमाटर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, और तुम यहाँ क्यों खरीद रहे हो? 100 रुपये में खरीद रहे हो, और वहां पर ये सड़क पे फेंक दिया गया है। सिर्फ इस वजह से फेंक दिया गया क्योंकि हम इस सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर पाए, हम इस चीज को मैनेज नहीं कर पाए, जिसको मैं हॉर्टिकल्चरल सेंसस कह रहा था, जिसको एग्रीकल्चरल सेंसस कह रहा था, कि इसके थ्रू हम मैनेज कर पाए कि जहां जरूरत है वहां कितना उगाना है, एक्सपोर्ट कितना करना है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, प्रोसेसिंग में कितना जाना चाहिए। इफ दिस स्टैटिस्टिक्स कुड हैव बीन मेड बिफोर ग्रोइंग दैट क्रॉप, before sowing it in the field, so probably this kind of pictures would not arise. This is the point. Okay, ये this is a real picture from मंडी, एग्रीकल्चरल मंडी। आप देखिए किस तरीके, ये इसमें सब में क्या भरा हुआ है, जिसको तुम पेरिशेबल कमोडिटी के रूप में अभी लेक्चर में पढ़ रहे हो। तो ऊपर वाला बोरा तो मजे में है क्योंकि तो लदा है दूसरे ऊपर, लेकिन नीचे वाले बोरे का क्या होगा जो दबा हुआ है नीचे, वो 4 बोरे के नीचे? समझ में आ रही बात? अगले पे चलते हैं सर। ये तो हार्ट की तस्वीर है, कहीं की भी ऐसी होती है, अभी देख गए होगे तुम लोगों ने देखा होगा, हार्ट तो ऐसी होती है। चलते हैं आगे। प्याज की छटाई हो रही है। अगर इस प्याज पे अभी पानी पड़ जाए, अगर पानी बरस जाए खुदा न खास्ता, तो क्या स्थिति होगी? प्याज तो सड़ जाएगा तुरंत ही, आपको पता है। ठीक, ये देखिए, गाय, सांड, बकरी, आदमी, ट्रक, सब उसी मंडी में होता है। कभी कोई मंडी गया है सुबह सुबह? आप तो देखा ही होगा फिर तो यही स्थिति होती है वहां पर। वो देख रहे हो, सबसे आजकल जिसको कह रहे हैं सबसे प्रोमिनेंट क्रॉप्स में से है वो खबहा। खबहा मतलब पेठा जिसको बोलते हो, वो लदा हुआ है, देख रहे हो? जानते हो काहे के लिए आ रहा है? वेट लॉस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और सभी बाबा लोग कह रहे हैं कि सुबह एक पेठे की कीमत पता है? इस समय करीब 30 रुपए किलो मिलता है, और 1 किलो का मिलता नहीं है।
वो कम से कम 6 किलो 8 किलो 10 किलो का होता है एक पेठा, मतलब 300 रुपया खर्चा करो तो एक पेठा मिलेगा तुमको। गाँव में कोई पूछता नहीं था बिल्कुल। उसकी एक शीप बनाई जाती है बड़ी, सुखा करके मुगौड़ी बनती थी उसकी, उसके अलावा उसका कोई का। लेकिन अब वो हेल्थ ड्रिंक के रूप में प्रमोट हो गया है। दो ही चीज चल रही है, एक नारियल का पानी बिक रहा है, नारियल पानी, और दूसरा पेठा। हाँ, रुद्रपुर में नहीं मिल रहा है पेठा, शॉर्ट हो जा रहा है, मंडी मिलता है कहीं पर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कहां पर तो कहीं इतना है और कहीं बिल्कुल नहीं है। चलते हैं आगे। अब हाँ, देख रहा हो गाय भी हम ले आए इस वजह से कि तुम लोग देख लो कि ये स्थिति। अब सोच के देखो, इस तरीके से अगर होल्डिंग प्रैक्टिसेस होंगी, मतलब उसको इकट्ठा करने की प्रैक्टिस होगी, तो उसकी पेरिशेबिलिटी तो कंप्रोमाइज होनी है, तो होना ही होना। ये सेब लादा जा रहा है कार्टन में, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, चलो। डिजिटल स्क्रीन है मंडी गेट का, जहां पे लिखा होता है। उस दिन मैं अपने क्लास में बता भी रहा था कि 3 तरीके के प्राइजेस होते हैं, एक मैक्सिमम प्राइस, एक मिनिमम प्राइस, एक को क्या बताया था मैंने, बोलो कोई? मॉडल प्राइस बताया था। हाँ, मॉडल प्राइस का मतलब वो प्राइस जिस पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेल ऑफ की गई हो। मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, और वो मॉडल प्राइस जिस पर सबसे ज्यादा कमोडिटी ट्रेड ऑफ की गई हो। चलते आगे। ठीक, चलते रहे आगे। ये ऑप्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर कमोडिटीज को ट्रेड ऑफ किया जाता है, एप्पल वगैरह रखे हुए हैं। चलो आगे। आलू प्याज प्लेटफॉर्म्स। हाँ, अब ये क्या चीज है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? शैलट्स बोलते हैं ना, प्याज, छोटा वाला हरा प्याज। और ये बड़ा कॉस्टली होता है, 5 स्टार मिलता है जब कुछ देंगे ड्रेसिंग वेसिंग बना करके। हाँ, स्प्रिंग अनियन, वही शैलट्स, छोटा प्याज। सुन रुको, अब वो देखो लिखा क्या है उसने, शनिचराय नमः लिखा ट्रक पे, और उसका देख लो हाल क्या होगा। तो उस गोभी, उस मूली को देख पा रहे हो यहाँ नीचे, इसका क्या हाल होगा, और उसकी क्वालिटी का क्या हाल होगा? आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे। हाँ, ये अंडर कवर सिस्टम है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये मॉडल जो है, ये है वो मॉडल जो टर्मिनल मार्केट्स का मॉडल है। टर्मिनल मार्केट देखी कभी किसी ने? एग्रीकल्चर टर्मिनल मार्केट कभी किसी ने देखी? अरे आपने देखी होगी। कहां पर देखी मैम? बैंगलोर में? हाँ, बैंगलोर। ये जिस एरिया में सिडकुल डेवलप किया गया है, क्योंकि मैं तो उस प्रोजेक्ट में शुरू से इन्वॉल्व था, ये जब एरिया हम लोगों से लिया गया बाद में, जिसमें अशोका लेलैंड वाले अपना ट्रक खड़ा करते हैं, जिसके सामने कॉलोनी बना रहे नई वाली, वो सरकार ने हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया। उसमें कहा गया कि साहब आपको एक टर्मिनल मार्केट का मॉडल यहाँ के लिए डेवलप करना है। तो हम लोगों ने पूरा मेहनत से, साइंटिस्ट आदमी काम मेहनत करना, उसने मेहनत से अपना ये मोटा डॉक्यूमेंट सरकार को सौंप दिया। सरकार ने वो उठा करके मेट्रोपोलिस को दे दिया कि इस पर कॉलोनी बना लो। तो वो टर्मिनल मार्केट जो होती है वो हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करती है। हब एंड स्पोक का मतलब होता है हब और स्पोक, जैसा पहिया होता है। तो सारी तीलियों से वो हब जुड़ी हुई होती है, देखा ना पहिया धुरी जुड़ी हुई होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए कैचमेंट एरियाज का काम करेंगे, और हब पे टर्मिनल मार्केट में वो सारी सुविधाएं होंगी व्हिच यू कैन थिंक ऑफ रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, राइट फ्रॉम वेइंग, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग फैसिलिटी से लेके ऑक्शन प्लेटफॉर्म से लेकर के हर चीज रहेगी। इवन फार्मर्स के लिए रेस्टरूम्स भी रहेंगे, पेमेंट के रियलाइजेशन के लिए बैंक्स रहेंगे, वगैरह वगैरह। ये टर्मिनल मार्केट का मॉडल है। तो अभी तक हम सिर्फ एक टर्मिनल मार्केट ये डेवलप कर पाए हैं, सफल मार्केट है बैंगलोर में, वहीं का सीन है ये। मैंने पिक्चर ली थी। वहां होता कैसा है, जैसे पिक्चर हॉल में बैठते हैं ना अपन, तो पिक्चर हॉल में सीट लगी होती है, उसमें नंबर होता है A7 B7 ऐसा होता है ना। अब आप जैसे मान लो A7 पे बैठे हुए, वहां डिस्प्ले हो रही होगी, कमोडिटी दिखाई जाएगी, उसकी वैरायटी कहाँ ग्रो की गई है, किसकी है, वगैरह वगैरह। अब आप अपनी सीट पे बैठे बैठे, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होनी है, B7 पे बैठे हुए ही आप प्राइस कोट कर सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया 250, तो आपका सीट नंबर और प्राइस जो आपने कोट किया वो वहां डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे वहां डिस्प्ले हो जाएगा कि B7 पे बैठे आदमी ने इस कमोडिटी के लिए इतना प्राइस कोट कर दिया है। और आपका चूंकि वहां पर एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिशन ऑलरेडी होता है, EMD जिसको कहते हैं, तो अगर आप वॉयलेट करते हैं अपने कोड को, तो आपकी EMD कन्फिस्केट हम कर लेगा, नहीं तो आपको तो कमोडिटी ले नहीं है, फिर तो आप ट्रेड ऑफ किया उसके लिए। ठीक है, तो इस सिस्टम से अभी उस सिस्टम तक जाने में बहुत समय लगने वाला है। कितना समय लगेगा, लेकिन ये मॉडल यहां एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ये सारी सुविधाएं वहां पर टर्मिनल मार्केट में आपके पास रहेंगी। मल्टीपल चॉइस ऑफ फार्मर्स, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वेइंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी रहेंगे, रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग भी रहेगी, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी रहेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। चलते हैं आगे सर। आईसीटी काफी कुछ काम कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर, बिजनेस टू बैठो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऐसे तमाम मॉडल्स आ सकते हैं मार्केट में। तमाम सारी वेबसाइट्स हैं। कुछ वेबसाइट्स को मैं उस दिन अपनी क्लास में डिस्कस भी कर रहा था आप लोगों के साथ, है ना, जिसमें हर चीज वेदर रिलेटेड कंडीशंस आपको मिल सकती है। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, प्राइस किसी कमोडिटीज का, जैसे एग मार्क नेट एक साइट है, लिख लो, जो लोग नहीं थे उस दिन क्लास में, आप लोग नहीं थे। एग मार्क नेट, उसका इंटरफेस में दिखा देता हूं आपको। एग मार्क नेट एनआईसी पे भी चलेगा, गवर्नमेंट पे भी चलेगा, सॉरी। ये देखिए उसका इंटरफेस है, तो बढ़ ये दिख रहा है। इसमें बाजरे की कौन सी वैरायटी का कितना प्राइस गया ये भी दिखाया जाएगा, कितना आज आवक हुई है वो भी दिखाई देगा आपको। लोकल लैंग्वेज में भी दिखाई देगा, तेलुगु में भी दिखाई देगा, मलयालम में भी दिखाई देगा, कन्नड़ में भी दिखाई देगा, हिंदी, अंग्रेजी, जिस भी भाषा में आप देखना चाहें वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देंगी। egmarknet.nic.in भी है, .gov.in भी है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अगर और ये बात मैं आपको बताऊं, आज से 12-14 साल पहले एक प्रोजेक्ट, ये जो एगमार्क नेट आपको दिख रहा है, इसके असेसमेंट का काम CABM को ही मिला था, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को ही मिला था। हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को, अलग अलग स्टेट्स, कैपिटल को जाकर के विजिट किया था, ये देखने के लिए कि वास्तव में एगमार्क नेट काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितना कर रहा है। तो मैं उस समय साउथ में, मुझे साउथ का एरिया मिला था, 5-6 स्टेट्स में गया था, AP वगैरह सब मिला करके। तो उस समय जब मैं गया तो वहां पर उन्होंने, जैसे ATM मशीन होती है ना, वो हमसे ज्यादा प्रोग्रेस है इस मामले में। ATM मशीन देखिए ना, क्या होता है ATM मशीन में, आप गए, आपने कार्ड डाला, टच किया, पिन विन डाला, पैसे निकल आए। जैसे वहां यहाँ पैसे निकालते हैं, वैसे वहां पर लिटरेचर निकलता है। जैसे मान लीजिए मैं पपाया का फार्मर हूं, मैं उसको इंफॉर्मेशन कियोस्क बोलते हैं या एग्रीकल्चर कियोस्क, उसमें गया, और अगर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं तो भी मेरे लिए वहां पर लिटरेचर कैसे निकलेगा। पपाया भी बना हुआ है, केला भी बना हुआ है, वहां पर कोकोनट भी बना हुआ, सब क्रॉप्स बनी हुई है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं पपाया को टच कर दूंगा, पपाया की फोटो देख करके, और उसके बारे में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, जिस भी भाषा में आप सुनना चाहें वो लिटरेचर बोलना शुरू कर देगा। वहां पर फोन्स रखे होते हैं, वो हेडफोन्स, वो पूरा बताएगा। पढ़े लिखे आदमी हो तो सुन भी सकते हो, उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पूरी दिखाई जाएंगे। डॉक्टर साहब, सोइंग कैसे की, प्लांटिंग कितनी की, लैब कहाँ थी, टिश्यू कल्चर कैसे किया, वगैरह वगैरह, फर्टिलाइजर कितना डालना, और वहीं पे बगल में लिटरेचर भी रखा होता है। हमारे यहाँ कर देंगे तो लिटरेचर तो घर उठा ले जाओगे, बच्चों को हवाई जहाज बनाने के लिए उसका ऐसे उड़ाएंगे, होगा नहीं होगा यही, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, सिविलाइज नहीं उस तरीके से जैसे वहां होता है। और ये बात अभी चल रहा है 2025, ये बात में अगर सही याद है मुझे तो ये 2005-6 की बात बता रहा हूँ, 20 साल हो गए उस बात को। तब मैंने वहां देखा था, और 1-2 जगहों पर नहीं देखा, कई जगहों पे देखा था। तो आपको पूरी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिसको आप आज की तारीख में गैप कहते हैं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, GAP के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस समय उनके कियोस्क में एस्टैब्लिश वो कर चुके थे, और कियोस्क काम कर रहे थे। I believe that none of you have ever seen that kind of kiosk here, irrespective of the fact that which place you belong to. वहाँ इंफॉर्मेशन कियोस्क लगे हुए हैं, लगे थे उस समय, लगे 20 साल पहले की बात था। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इनिशिएटिव 20 साल पुराना है, लेकिन अगर पढ़े लिखे आदमी, जितने लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है इसमें कितने हैं, मुझे लगता है 90% जनता एग्रीकल्चर की ग्रेजुएट होगी या अलाइड की होगी। हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फिशरीज हो सकता है, डेयरी हो सकता है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे जैसे लोगों को ये नहीं पता है, जो दिन भर खेती, किसान और पंतनगर यूनिवर्सिटी, हार्बिंजर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी की बात करते रहते हैं, तो फार्मर को कैसे पता होगा? अगर उन्हीं को नहीं पता है जो दिन भर इसी की रोजी रोटी इसकी है, तो ऐसा गलत तो नहीं कह रहे हैं? ठीक, ये इनिशिएटिव 20 साल पुराना और 20 साल से काम कर रहा है। इस समय बजा हुआ है मेरी घड़ी में 10:28, 27 मिनट।
10:27 का छोड़ो, 10:20 का अगर आप देखना चाहें हल्द्वानी मंडी में आज आलू का कीमत कितना कोट किया गया है, आप इसकी साइट पे जाइएगा जब भी आपको कभी समय मिले और आप उसको देख सकते हैं। 5 मिनट पहले की रिपोर्टिंग अपलोड होती रहती है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। न सिर्फ इतना, ये तो नेशनल इनिशिएटिव है, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड जिसको SAMB बोलते हैं, उसके भी पैरेलल ये सिस्टम काम कर रहा होता है। मतलब उसमें एक रिकंसिलिएशन होता है दोनों के बीच में, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड एंड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, जिसको DMI कंट्रोल करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, DMI फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है, वो इस इनिशिएटिव को कर रहा है। और सिर्फ प्राइजेस के बारे में नहीं, इसमें सारी चीजें हैं, वेदर कंडीशन से लेकर के व्हाट नॉट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एग्रीकल्चर रिसोर्स इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट की भी है, इस पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो नया सिस्टम आ गया, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इनैम जिसको कह रहे हैं आप, ठीक है। कैसे हो रहा है, हाँ, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के बारे में आप बात करेंगे, जिसको IPM कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्रॉप वाइज ले सकते हैं, प्लांट क्वारंटाइन के बारे में, लोकस कंट्रोल कैसे करना है, HRD पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह, जितनी चीजें विच यू कैन थिंक ऑफ। So this information in particular is giving you a tremendous base of information. आप सब कुछ इसमें से ले सकते हैं। ये डैकनेट का है, इस पर आप जाकर, कहने का मतलब ये है कि कोई एक या दो साइट्स नहीं है कि सर ने ये वाली बताई थी तो इसी पे सब कुछ, आप सिर्फ डालिए उस पे। और तमाम प्राइवेट वेंचर्स ऐसे हैं, प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिनके इससे ज्यादा रिमार्केबल वेबसाइट्स रन कर रही, पोर्टल्स रन कर रहे हैं। जैसे एक है tarahat.com, एक है ikisan.com। आई किसान को जरा हिट करो अपने पे, देखो आई किसान, आई स्मॉल आई किसान, देखिए जरा से 1 मिनट में जल्दी से। ये ITC ई चौपाल का मॉडल है, कुछ लोगों ने शायद नाम सुना होगा, ITC ई चौपाल, बहुत बढ़िया मॉडल, 20 साल पुराना मॉडल, अभी भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये उसका पूरा एक स्नैपशॉट है कैसे काम करता है ये कहाँ चला गया यार, हाँ ikisan.com। अरे मेरी पीढ़ी कहाँ है यार, है तो, देखो देखो पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अभी देखो ना, देखो पढ़ो, इसी वजह से तो दिया, नहीं तो मैं ही नहीं बता देता। आई किसान, tarahat.com है, बहुत सारे हैं, चौपाल सागर है, और भी तमाम इनिशिएटिव्स हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं था, इसको जरा शॉर्ट करते हैं दोस्त, है ना, और आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और, चलो आगे, ये सब छोड़ दो, इतना समय भी नहीं है मेरे पास, और चलते रहो आगे, चलो चलो आगे चलते रहो, चलते रहो, लास्ट में आ जाओ एकदम, इसको मिनिमाइज कर दो, लास्ट में आ जाओ। हाँ पीछे वाले पे आओ, 1-2 स्लाइड्स और दिखाऊंगा क्योंकि समय सब कम है मेरे पास। हाँ, उस दिन हम लोगों ने ग्रीन हाउस देखा था, दीज आर सम ऑफ द स्नैप्स व्हिच आई हैव टेकन इन US, है ना, मैं पीछे गया था तो वहां से मैं लेकर के आया था ये। अभी तो हम लोगों ने बहुत छोटे स्तर पे देखा होगा ग्रीन हाउस, है ना, कि उसमें थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो जाती है, मतलब बारिश जैसा दे देते हैं, थोड़ा मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा सा उसको नेट वेट लगा देते हैं, उस तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो कम से कम आपको 500 मीटर एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़ेगा, 500 स्क्वायर मीटर नहीं कह रहा हूँ, 500 मीटर कह रहा हूँ, 500-600 आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा इधर और इधर मिला करके पूरा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है। चलो दिखाओ जरा तो इनको फिल्म, ये देखिए सारा डेवलप कर दिया उन्होंने, ठीक है, और चलो शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है,
कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार इसमें। देख रहे हैं आप, सारे मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस हैं, कोई मैनुअल ऑपरेशन नहीं है, मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस फॉर मेंटेनिंग दिस टेक्नोलॉजी। और चलते हैं आगे, देख रहे हैं कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। 2-4 आदमी रहेंगे वहां पर, हमारी तरह नहीं कि 20 आदमी है फिर उसमें 10 आदमी बीड़ी पी रहा है बैठ करके, एक बना रहा है चुनौती, वो सब कुछ चक्कर नहीं। वहां 2-3 आदमी मिलकर के साहब शो पूरा मैनेज करेंगे। हम सोच भी नहीं सकते उस बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। अभी हम बहुत पीछे हैं उससे। और चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, देख रहे हो ऊपर से मिस्टिंग वगैरह सारा पूरा, और ये ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है। जिसको जितना फर्टिलाइजर चाहिए, जिसको जितना पेस्टिसाइडल स्प्रे चाहिए, जिसको जितना वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं। वो देख रहे हो ऊपर घूमता है, वो अपने आप स्प्रे कर देगा और सेकंड्स उसमें सेट है, ऑलरेडी सेट है कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड, जैसा भी है वो सेट है। आप देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर, कितना बड़ा है। और चलते हैं आगे, चलो और दिखाई दे रहा है सेटअप। हाँ फन जी, मॉस। और चलते हैं, चलो आगे। ये तो मेरी शक्ल आ गई, इसको हटाओ, ये ठीक है। और चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। चलो और चलिए, क्योंकि देख कर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, बनस्पत मैं इसके सबके बारे में। हाँ ग्रीन शेड के लिए नहीं, ये प्रोपोगेट कर रहे हैं वहां पर, उसके लिए सजावट के लिए भी, ऑर्नामेंटल भी, बेच भी दे। ह्यूमिड कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल मल्टीपल रीजन है उसके। अभी फ्लावर्स पे ये देखिए आप, है ना, समझ में आ रहा है ना, द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। और चलते हैं, हम लोगों ने कितने बड़े देखे होंगे। हाँ ये देखिए आप, और इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 आदमी रहते हैं, इससे ज्यादा आदमी वहां नहीं रहता है, क्योंकि इतना आदमी उनके पास है ही नहीं हमारी तरह। चलो और हाँ चलो आगे चलो, ये तो शक्ल वाली फोटो छोड़ दो सब। समझ में आ रहा है ना, तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए भी, यहां पर प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रोजेक्ट है, कभी किसी ने नाम सुना हो अगर, उसका नाम है, जो 3 आम आते हैं ना खास अपने यहाँ जो होते हैं, एक होता है दशहरी, एक होता है लंगड़ा, एक होता है चौसा। उसकी ब्रांडिंग करी गई है यूपी में, पता है, नवाब नाम से, नवाब, NAWAB, नवाब नाम से ब्रांडिंग की गई है, और गल्फ कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी चूंकि फार्मर है तो हम लोग भी एसोसिएटेड उस प्रोजेक्ट में। अभी एक लड़की आई PGP2 की, और कहने लगी सर वो आपके फादर इन लॉ मिले थे वहाँ। तो हम लोग, मेरे फादर इन लॉ तुमको कहाँ मिल गए, वो तो दिल्ली रहते हैं। तो उसने बताया वो हमारे मम्मी और ससुर हैं, वो बड़े फार्मर हैं वहाँ पर, तो उनसे कहीं मुलाकात हुई है, उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी है। तो कह लगे सर उनका तो रेफरेंस दिलवा दीजिए, वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहते, वो कुछ ऐसा है, मतलब अब कहाँ बात आई। तो वो लोग वहाँ, डॉक्टर साहब ये तीनों जो आम है, इनकी अलग अलग वेराइटल असॉर्टमेंट कर रखे हैं उन्होंने, और मदर डेयरी उनसे सीधा प्रोक्योर करता है फील्ड में ही अपने, है जो ये एरिया ना, माल मलिहाबाद वगैरह का एरिया, इस पूरे एरिया में, और उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है। और वहां से वो पूरा एक साथ प्रोक्योर करेंगे, कॉर्गेटेड बॉक्सेस में उसको पैक कराएंगे, और सीधे गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट। नवाब नाम से एक्सपोर्टिंग है उसकी। क्यों? क्योंकि तीनों का राइपनिंग का टाइम अलग अलग होता है। तो उन्होंने, हाँ ये है कि उसमें 400-500 ग्राम से कम का कोई आम नहीं होता। चौसा तो वैसे ही बड़ा होता है, लेकिन दशहरी में भी जो शेप एंड साइज है उसकी वो फिक्स्ड है। उस साइज का अगर, हाँ उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल को उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ट्रेनिंग प्रूनिंग से लेकर के, और आप कितना पेस्टिसाइडल स्प्रे करेंगे उस पर, आपकी जिसको हम कहते हैं ना ट्रेसेबिलिटी, नाम सुना, ट्रेसेबिलिटी इशू। ट्रेसेबिलिटी इशू का मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में, अगर आप फॉरेन में देखेंगे किसी भी बॉक्स को, पैक बॉक्स को, तो उस पर लिखा होता है कि कौन सी वैरायटी है, कब उगाया गया, कितने दिनों की वैरायटी थी, किसने उगाया हुआ है, किस फील्ड में उगाया हुआ, किस प्रोविंस से आता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, ये सब कुछ उस पर लिखा होता है। हाँ, तो आप उस ट्रेसेबिलिटी का मतलब है आप ट्रेस कर सकते हैं कि वास्तव में ये है क्या चीज जो हम खाने
जा रहा है, उसके लिए कंज्यूमर अलार्मनेस चाहिए होती है, वो अभी हिंदी में भी आपने बताया था सर कि नंबर पे दबाने पूरा आ जाता है डिटेल। हाँ वहां भी आएगा, लेकिन ये चीज तब की है डॉक्टर साहब जब आप पैक्ड बॉक्स को घर लेकर के आ रहे होंगे। जैसे लीची है, लीची की प्लकिंग किसी ने देखी है? लीची की डॉक्टर साहब तो एक्सपर्ट है खैर। लीची की प्लकिंग जो है अर्ली मॉर्निंग की जाती है, जानते हो क्यों? 4 बजे 5 बजे की जाती है, जिससे फील्ड हीट ट्रीटमेंट उसका किया जा सके। एफएसटी बोलते हैं ना डॉक्टर साहब इसको, एफएसटी फील्ड हीट ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आप 5 बजे के बाद लीची की प्लकिंग करेंगे तो स्पॉइलेज की संभावना बढ़ जाएगी। किस स्टेज पे कितनी राइपेंड हो, टीएसएस वगैरह नापा जाता है उसका, तो वो सब चीजें करने के बाद ही एक मीटर होता है उसका, वो देखते हैं। सेब के लिए भी वैसे ही होता है वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये कि ये सारी एजुकेशन का बेस जो है ना बड़ा एग्जॉस्टिव है, देखना पड़ेगा हमें आगे बढ़ करके कि ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन इज नॉट द इशू इज ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए आपके पास एक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो कि उस पेरिशेबिलिटी को कंट्रोल कर सके। अगर मान लीजिए हम यहाँ उगा रहे हैं पंतनगर में और दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते वो 2 दिन लगा देता है, और रेफ्रिजरेटेड वैन हमारे पास है नहीं, कूल चैम्बर्स हमारे पास है नहीं, तो जब तक वो पहुंचेगा तो आज 20 रुपए की स्टिक वहां पहुंचते पहुंचते 5 रुपए की रह जाएगी, तो 15 रुपए तो मार्केट में पहुंचने से पहले ही उसकी कीमत कम हो गई। तो प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी इंश्योर नहीं हो सकती। ये बात समझ आई आपको? तो ये है, ठीक, बस इतने पे ही रुक जाते हैं, बाकी तो फिर बहुत कथा है इसमें। आप किसी को कोई सवाल पूछना हो खास तौर पे तो पूछो, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर तो मैं 5 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया बस। यस, कूल चेन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेरिशेबिलिटी कंट्रोल होगी ही तभी उसी से, नहीं तो वो होगा ही नहीं आपसे। दूध है, आपने देखा है कभी 1 घंटे बाद दूध लेकर के आओ, 8 बजे 9 बजे लेकर के आओ, तो निश्चित रूप से 100 पैकेट लेके आओ तो 50 पैकेट उसमें फट जाएगा तुम्हारा दूध। क्यों? क्योंकि कूल चेन टूट गई उसकी। होता है। फिश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिश। आप फिश को देखिए वो कैसे करते हैं, बर्फ रहेगी, बर्फ के सिल रहेगी, वो तय रहेगी, तर रहेगी, तर रहेगी, ऐसे करते हैं। तो कूल चेन सबसे इंपॉर्टेंट अगर पेरिशेबिलिटी को कंट्रोल करना है। और मछली अगर सड़ गई एक बार तो सबको बेकार कर देगी, सारा लॉट बेकार हो जाएगा। एक चीज सर इसमें देखा, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसके साइज पे भी उसका रेट बिल्कुल वेरी करेगा, मैंने पहले ही कहा। क्वालिटी सेम है, सेब हो, आम हो, लीची हो, अभी जो कीवी आप खा रहे हैं ना, अब वो चाहे देखो बेचने वाली बात है, अभी कीवी की कीमत कितनी होती है एक पीस की? 30 रुपए 40 रुपए, कम की कीवी नहीं आती। 4 कीवी रहेंगे 150 रुपए या 125 रुपए का पैकेट देता है। ये कीवी हम लोग जो खा रहे हैं सब 2 एम 10 की कीवी है, आप भी जानते हैं साइंटिस्ट। कीवी कहाँ का प्रोडक्ट है? यहाँ का तो प्रोडक्ट है नहीं है, न्यूजीलैंड से आता है। आप वहां की कीवी देखिए और यहाँ की कीवी देखिए। ड्रैगन फ्रूट ही देख लीजिए, ड्रैगन फ्रूट उगा रहा है, अभी हमने चारसी पे भी प्लॉट देखा है, वहां लगाया है उन्होंने, लेकिन वो क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। देखिए किसी भी चीज को आर्टिफिशियली ग्रो किया, आप कश्मीर में जाके सेब खाइए और आप उत्तराखंड का सेब खाइए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वैरायटी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन ये सीजनल वेरिएशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटी में हो सकते हैं। टाटा नैनो कार आप पंतनगर में बनाते थे और साणंद में भी बनाते थे, गुजरात में एक जैसी बनेगी, लेकिन यहां पर आप सारे साइंटिस्ट मिलकर के भी नारियल का पेड़ पे नारियल नहीं लगा सकते। चाहे कुछ कर लीजिए, उसमें नमक का बोरा डाला जाता है, पता है, जड़ में नमक डाला जाता है उसमें, उसको थोड़ा सा वैसा सॉइल करने के लिए, लेकिन भगवान तो बेवकूफ नहीं है ना, उसको तो पता है ये पंतनगर में उगा रहे हैं उसको तो पता है। तो ये किस में आएगा सर? मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं जी, डच में आएगा, इंग्लिश? देखिए जैसे कीड़ा जड़ी जैसी चीज है जो खराब नहीं हो सकती, तो उसमें तो इंग्लिश ऑप्शनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कम से ज्यादा की हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे मान लीजिए आपने एलोवेरा है, एलोवेरा के पत्ते को काटा और उसका सैप निकाला, तो उसमें पेरिशेबिलिटी है, इस वजह से, क्योंकि अगर ताजा नहीं रहा तो उसमें खटास आ जाएगी। तो डच ऑक्शनिंग, कहने का मतलब है कि अगर कोई आइटम पेरिशेबल है तो डच ऑक्शनिंग आपको अडॉप्ट करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्रेशेस्ट फॉर्म में जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है। दूध है, दुहा हुआ दूध है सामने का, तो सबसे ज्यादा कीमत है। घंटे भर के बाद का है तो उसकी कोई कीमत नहीं, तब तक वो फट जाएगा, सिंपल बात। एक चीज सर और हाँ, देखने मिली है, अभी पहले जो ट्रेडिशनल क्रॉस होते थे उसको कोई नहीं पूछता, जैसे भी आपने उसका एक दिन बताया जो पेठे का, हाँ उसी तरह आज के रिफ्लेक्स सीट चल के आ रहे हैं। बिल्कुल गाँव बिल्कुल, में पहले बोरे बोरे लोग कोई पूछता ही नहीं था उसको। अरे पहले एक कहावत थी कि कोदो सवा तो जुड़त ही नहीं, कहते थे ना कहावत, कोदो सवा मतलब कोदो और सवा भी इनके पास नहीं है, इससे ज्यादा गरीब आदमी कोई हो सकता है? आज कोदो सवा खरीद पाना सबके बस का नहीं है। हाँ, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हो तो भी गिन गिन के खाओगे कि 10 ले लो 20 तो ले लो।
ज्वार बाजरा जो है ये सब चीजें गरीब तो लोग आप देखिए मानते कि थे। जितना भी इस तरीके का प्रोड्यूस है वो पिछले 10 सालों में खादर वली साहब ने बहुत काम किया इस पर, डॉक्टर खादर वली ने, जिसको मिलेट्स मैन कहा जाता है इंडिया में। तो खादर वली साहब ने जब इसको एडवेंट किया या बढ़ाया, प्रमोट किया, तब से अब हर आदमी जो हेल्थ कॉन्शियस है वो यही ले रहा है। तो वेरिएबिलिटी तो है, नहीं वेरिएबिलिटी तो तो सर पहले गांव में तो पहले से खाते आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ज्वार बाजरा मक्का ये तीन तो थे ही थे, बाकी कोदो सावा जोनहरी जिसको कहते हैं, ये सब चीजें तो पहले ही से चलती थी गांव में, खाते थे लोग, ऐसा नहीं है। अब तो वहाँ भी नहीं खाते। नहीं, अब वहां क्यों नहीं खा रहे हैं? इस वजह से क्योंकि उन्होंने गेहूं खाना सीख लिया ना, इस वजह नहीं खा रहे हैं। तो एक वर्ड दिया, एक एम एन श्रीनिवासन साहब हुए हैं, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, एम एन श्रीनिवासन। उन्होंने एक वर्ड दिया था संस्कृताइजेशन, हिंदी में उस नहीं कहा उन्होंने संस्कृतिकरण, लेकिन वर्ड जो उन्होंने कॉइन किया था दैट वाज सांस्कृताइजेशन। सांस्कृताइजेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया और ये बताया कि जो अपर मोस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी होता है वो अपने कल्चर को बदलता है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो भी बदलता है, और हम एक दूसरे की संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं। जैसे बहुत बड़े आदमी होंगे, हीरो हीरोइन टाइप के, और वो सेलिब्रिटीज होंगे तो वो 3 शादियां करते हैं, देखा है कभी? वो एक करे फिर वो साल भर बाद दोनों, और फोटो खिंचाते वक्त तो ऐसे भी खिंचाएंगे ऐसे भी खिंचाएंगे, फिर 2 साल बाद जो है वो एलिमनी देके छूटते हैं एक दूसरे से। देखा है नहीं देखा है? हाँ, वो 2 साल 3 साल ज्यादा शादी उनकी नहीं टिकती, पता चलता है इनकी चौथी है, इनकी 5वीं है, ऐसा होता है। और बहुत नीचे तबका जो है वहां भी पॉलीएंड्री भी होती है, पॉलीगैमी भी होती है। तो वो तबका मिडिल वाले जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग वो फंसे रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो ले आए वो ही रखना है। अब बात समझ आई? तो ये दिस फिनोमिना ही कॉल्ड एज सांस्कृताइजेशन, मतलब संस्कृति का जो आपस में एक आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ संस्कृति, दैट इज सांस्कृताइजेशन। तो ये चलता रहता है सोसाइटी में। तो वही है ना बात कि हम गेहूं खाना छोड़ रहे हैं तो वो गेहूं खाना सीख रहे हैं, और सीख चुके हैं, सीख कर रहे हैं। अभी भी गांव में आप ज्वार बाजरे की रोटी आपको आसानी से, ज्वार बाजरे, गन्ने का रस, पहले गांव में बेल हुआ करती थी, देखी होगी आप लोगों ने, बेल जहां गुड़ बनता था, घर घर होती थी, हर दूसरे घर में बेल हुआ करती थी गुड़ बनाने की। आज की तारीख में गुड़ बनाने के लिए आपको कोई मशीन कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इधर बिजनौर साइड में थोड़ा बहुत दिख जाता है, बाकी सब शौकिया लोग रखे हुए हैं अपना थोड़ा बड़ा, बाकी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तो चीनी आ गई ना। लेकिन बड़े आदमी अब क्या खा रहे हैं? चीनी नहीं खा रहा है, वो खांड खा रहा है, खांड, देसी खांड। और ऑर्गेनिक खांड के नाम पर 200, 250, 300 रुपए किलो मिल रही है देसी खांड। चलते हैं, मिलते हैं फिर, अब आपका चाय का टाइम है। थैंक यू।